Morning one and all. Today is 29th May 2021 and I'll be taking your Linux chapter 3, creating user accounts and groups. So we have already seen the theory. There is a command called as add user command to create a user in Linux operating system. You can create the user account using the command as well as using the GUI option. So steps are written here in the book. How do you create a user? So let's see. First of all, the simple way to create a user. You have to click on system, administration, and then here at the end you have users and groups. See here at the end, users and groups. System, administration, users and groups. Okay. See users, you can see different users which are already created over here. Let's create a new user and just remove this user BCA. एड यूजर यहाँ से क्लिक करोगे या तो फाइल के ऊपर जाने के बाद में एड यूजर. You have to specify the username. Say, for example, I'm creating a username called BCA. The full name is also BCA. Password, let's keep as 123456. Confirm password 123456. See the name of the login shell. यहाँ पर ये ध्यान से देखो login shell, क्योंकि because next topic is different types of shells. So here you can see the different types of shells are bash, CSH, KSH, SH, TCSH and no login. So here by default we can have /bin/bash shell. bin डायरेक्टरी के अंदर bash shell रहता है डिफॉल्ट में, तो हम bash shell सिलेक्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट का. क्रिएट होम डायरेक्टरी एंड द पाथ फॉर द होम डायरेक्टरी /home/bca. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो होम डायरेक्टरी का डिफॉल्ट का पाथ रहता है /home/name ऑफ द यूजर. अगर हम यूजर बीसीए क्रिएट कर रहे हैं तो इसी नाम से हमारा ये होम डायरेक्टरी का पाथ क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद जब भी हम एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं उसी नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है. क्रिएट अ प्राइवेट ग्रुप फॉर द यूजर, उसी नाम से एक प्राइवेट ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है. तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर. We have specified the username, we have specified the full name, then password, confirm password. The name of the default shell is bash shell which is present under bin directory. bin binaries हमने पढ़ा था यूजर बाइनरीज एंड सिस्टम बाइनरीज एज bin. सिस्टम बाइनरीज, यूजर बाइनरीज के अंदर bash shell रहता है. bash shell, the shell which is responsible for interpreting the commands. कमांड इंटरप्रेटर कहलाता है. तो इसके अंदर सारी कमांड्स की डेफिनेशंस लिखी हुई है, सारी कमांड्स का शेल लिखा हुआ है. जब भी एक ये जो बीसीए यूजर है वो लॉगिन करेगा तो इसकी होम डायरेक्टरी का पाथ /home/bca के अंदर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ होम डायरेक्टरी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ यूजर क्रिएट करने के टाइम पे हमने इसकी डायरेक्टरी स्पेसिफाई की. देन लेट्स क्रिएट अ प्राइवेट ग्रुप फॉर द यूजर के लिए हमने एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट किया है and then you have to press OK. So see here the user is created automatically, the user ID is assigned, the primary group for this user is BCA. एक यूजर जो है वो अपने ही ग्रुप का मेंबर रहता है, तो ये यूजर जो है BCA ग्रुप का मेंबर है. फुल नेम, नेम ऑफ द शेल एंड द होम डायरेक्टरी. यू कैन चेक द ग्रुप. ग्रुप में भी BCA नाम से एक यूजर एक ग्रुप क्रिएट हो गया है. जैसे ही हम एक यूजर क्रिएट करते हैं तो उसी नाम से हमारा ये ग्रुप भी क्रिएट हो गया है. ओके, एंड लेट्स से we'll close it. We'll go to system, we'll log out from the root and try to log in using a user that is BCA which is recently been created. तो हमने एक BCA नाम का यूजर क्रिएट किया है. Now let's log in using BCA. So user name is BCA. Enter. Password is 123456. Enter. And now we are into the BCA user. As soon as the user logs in, user automatically switches to the
its home directory. So let's see the home directory path for this user. Go to accessories and go to terminal. Yeah. As soon as the user logs in into its shell. The name of the shell is slash bin slash bash shell. Bash shell is present under bin directory. देखो यहाँ पर prompt क्या दिखाई दे रहा है? Here you are getting a prompt as dollar. और see here bca @localhost दिख रहा है? bca @localhost में वो फोन किया है. So let's check the name of the directory into which it switches to. So we have already seen pwd command. Pwd is print working directory. So by default it switches user switches to its home directory, and the home directory for the user is /home/bca. /home/bca यूजर का होम डायरेक्टरी का पाथ है. तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्विच ओवर हो गया जैसे ही यूजर उसके अंदर लॉग इन होता है. तो ये देखो यहाँ पर /home/bca में चला गया. अब देखो मैं cd स्पेस डॉट डॉट करने की कोशिश करती हूँ और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करती हूँ. तो ये पेरेंट डायरेक्टरी में चला गया. इसके बाद में यहाँ रूट डायरेक्टरी में भी चला गया. अब यहाँ पर mkdir कमांड से लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल बैन. तो आपको क्या दिया है इसने? कैनॉट क्रिएट बैन, परमिशन डिनाइड. क्यों परमिशन डिनाइड है? क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी के अंदर जाकर हम एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं. वी हैव अ परमिशन टू क्रिएट अंडर आवर होम डायरेक्टरी ओनली. हमें अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ही परमिशन है. चलो स्लैश होम के अंदर जाने के बाद में ये कमांड टाइप करते फिर भी अलाउड नहीं है. अब इसके बाद में के अंदर हमारा BCA यूजर है. BCA के अंदर चले जाते हैं and now I'll type mkdir ban. So ban directory is created. We'll list out. We can type that ban directory is created in our home directory. सिर्फ हमको कहाँ परमिशन है एक नॉर्मल यूजर को वर्क करने की? The normal user is having permission to work under its home directory only. जो रूट रहता है उसको सारे प्रिविलेजेस रहते हैं. वो सुपर यूजर रहता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. तो एक जो नॉर्मल यूजर है उस नॉर्मल यूजर को परमिशन नहीं दी. नाउ वी आर लॉगिन इन रूट डायरेक्टरी. रूट डायरेक्टरी में वी आर लॉग इन. नाउ वी विल क्रिएट द यूजर यूजिंग द कमांड. रूट डायरेक्टरी में लॉग इन कर लिया हमने, नॉर्मल यूजर से लॉग आउट कर लिया बिकॉज परमिशन वाज नॉट देयर in the normal user account. Now we will create the account using the add user command. As you add user command के through, let's create the user. So the command is add user, and you have to specify the name of the user. BCA. Suppose I have created a name of the user as BCA2. So what is the command which I have to write? Add user BCA2. -d के साथ में हम डायरेक्टरी ऑप्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. So -d, along with that we can specify the name of the directory. So it helps to create the home directory for the new user. And if your user is BCA2, the home directory path will be /home/BCA2. So let's create the command invalid home directory BCA2. So let's say add user BCA2 directly will create it, and just check whether it has created the user or not. So I can switch to /home/BCA. It automatically creates. देखो -d करने से नहीं भी किया बाय डिफॉल्ट में -d ले लेता है and it automatically creates the home directory for the BCA2 /home/BCA2. ये -d नहीं भी लिखा तो भी क्रिएट हो गया डिफॉल्ट में.
तो होम डायरेक्टरी पाथ /home/bca2 is created for the bca2 यूजर. हम किस पे वर्क कर रहे हैं? वी आर वर्किंग अंडर रूट डायरेक्टरी. तो रूट डायरेक्टरी से हमने कहाँ स्विच ओवर कर लिया? वी आर नाउ इन bca2. सो माय bca2 यूजर हैज बीन क्रिएटेड एंड आई कैन एक्सेस दैट यूजर बाय लॉगिन. तो यहाँ पर वी कैन सिंपली शट डाउन द सिस्टम एंड जस्ट चेक. यहाँ से सिस्टम, यहाँ से लॉग आउट करके यू कैन लॉग इन यूजिंग bca2 एंड सप्लाई द पासवर्ड एंड चेक वेदर द यूजर हैज बीन क्रिएटेड और नॉट. आपको यूजर देखना है तो हमारे पास में डायरेक्टरी है. हम /etc डायरेक्टरी के कंटेंट्स चेक कर सकते हैं. /etc इसके अंदर हमारे पास में parswd फाइल रहती है. parswd /etc/ I'll just check it out in which directory it is there. And in that directory you can see the users which are being created. I'll just show you this. Before that we will switch to the user parswd command. देखो ये parswd command है using which the password can be set. So this is a command which is present in that shell. Let's see how it works. Parswd command. Okay, we are working under /home/bca2. Now I'll type parswd command. parswd command changing the password for user root user का पासवर्ड चेंज कर रहा है ये. ठीक है, नया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6. ओके, बैड पासवर्ड दे दिया. रीटाइप द पासवर्ड. सपोज इफ आई डोंट वांट टू टाइप, आई सिंपली क्विट. ओके, अगर मैं parswd कमांड के साथ में यूजर का नाम स्पेसिफाई करती हूँ bca2, सो इट कैन आस्क मी parswd bca2. So it can specify me, it can ask me the password for the bca2 user. So retype the password for the bca2 user. Okay, bca2 का पासवर्ड सेट कर दो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. New password is 1 2 3 4 5 6. And the password, all authentication tokens updated successfully. So the password for bca2 has been set using the command. मैंने अभी ये bca2 यूजर किससे क्रिएट किया? कमांड के थ्रू. ऐड यूजर कमांड यूज की. हमने सबसे पहले क्या किया? आई एम जस्ट क्लियर द स्क्रीन. आई हैव यूज्ड द कमांड ऐड यूजर. उसके बाद में bca यूजर क्रिएट किया. सपोज bca3 यूजर क्रिएट किया. ये यूजर क्रिएट हो गया. जैसे ये यूजर क्रिएट होगा तो इसका होम डायरेक्टरी पाथ क्रिएट हो जाएगा. हम cd डायरेक्टरी से /home/bca3 डायरेक्टरी में स्विच ओवर कर सकते हैं. ये देखो इस डायरेक्टरी में स्विच किया. parswd कमांड से bca3 का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. टाइप द न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5 6. आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैं ये इसलिए टाइप करूँ. दिस इज द इजी वे टू रिमेंबर द पासवर्ड. ठीक है, सो इट इज 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर आपको दिखाई भी नहीं देता है कि पासवर्ड क्या है. स्टार भी नहीं दिखते, कितने लेटर का ये भी नहीं दिखाई देता. ये इसकी हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का. सो ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली. सो वी हैव क्रिएटेड अ यूजर. आप इसको लॉग आउट करके लॉग इन भी करके देख सकते हैं. नाउ द नेमिंग कन्वेंशन वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर द पासवर्ड. ओके, सिमिलरली लेट्स क्रिएट अ ग्रुप. ग्रुप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? आई कैन स्विच टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड यहाँ पर यूजर अकाउंट एंड ग्रुप्स दिए हुए हैं. So I'll just close it. System administrator administration and user and groups. So let's create a group. ग्रुप क्रिएट करने का मतलब ये है एड ग्रुप. एक ग्रुप में से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट ग्रुप बनाया. स्टूडेंट ग्रुप स्पेसिफाई मैनुअल यूजर मैनुअल आईडी या फिर ऑटोमेटिकली ले लें. तो ये इस नाम से एक स्टूडेंट ग्रुप
क्रिएट हो गया. ग्रुप नेम स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट. चलो कॉलेज नाम से क्रिएट कर लिए. कॉलेज. ओके, द नेम ऑफ द ग्रुप इज college and I can specify the members of this group. तो कौन कौन से यूजर्स इस ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं ये भी हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल BCA3, BCA2, ये सारे यूजर्स जो है इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे. तो जो परमिशन इस ग्रुप को अलाउ होगी, जो इस परमिशन इस ग्रुप को दी जाएगी, प्रॉपर्टीज इस ग्रुप को दी जाएगी, वो इन यूजर्स को लग जाएगी. मतलब हम एक यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर को प्रिविलेजेस देते हैं, सेपरेट प्रिविलेजेस. और अगर हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो उस ग्रुप को उस ग्रुप में सारे जो यूजर्स हैं उस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं. तो जो भी इस ग्रुप को परमिशन दी जाएगी वो एप्लीकेबल रहेगी सारे यूजर्स को. लाइक यू कैन क्रिएट अ जीमेल ग्रुप फॉर योर बैच ऑल्सो. मतलब आप हम लोग जैसे तुमने व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है वैसे हम लोग जीमेल का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं BCA स्टूडेंट्स के नाम से. तो सारे स्टूडेंट्स जो BCA है उनको अगर उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे तो मैं अगर सिंगल मेल भी BCA ग्रुप पर डालूंगी तो वो सारे जो भी यूजर्स उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे उन सबको वो मेल चला जाएगा. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रुप. सो दिस इज हाउ डू यू क्रिएट अ ग्रुप. Now let's see the different types of shells in Linux operating system. So different shell in Linux operating system are bash shell, which is default shell, ASH, KSH, TCSH and ZSH. तो डिफॉल्ट में बैश शेल रहता है, बॉर्न अगेन शेल रहता है. इसके अंदर कितनी कमांड्स है? 48 इनबिल्ट कमांड्स अवेलेबल है. ठीक है, इनको लिस्ट करने के लिए हैश प्रॉम्प्ट पे आप L और टैब की प्रेस करेंगे तो आपको सारी कमांड्स जो L से शुरू होती है वो लिस्ट आउट हो जाएगी. ASH शेल जो है वो किनेथ एल्मिक्विस्ट ने बनाया था. ये शेल के अंदर 10 कमांड लाइन ऑप्शंस हैं. ठीक है, देन वी हैव KSH शेल. अभी मैंने आपको शेल दिखाया था अलग अलग शेल. एंड व्हाट इज अ शेल? शेल इज अ कमांड इंटरप्रेटर. हमने उसका आर्किटेक्चर भी शेल का देखा है. शेल कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर. इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. कर्नल से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है और हार्डवेयर के साथ में. KSH stands for Corn Shell by Eric Gissen and there are 42 built-in commands and 20 command line options available in this. ठीक है, इसके अंदर ये जो /et से /profile फाइल है, ये डॉट प्रोफाइल फाइल क्या स्टोर करती है? ये लॉगिन करने के टाइम पे जो भी प्रोफाइल क्रिएटेड है वो उसको स्टोर करती है. Then we have TCSH shell. This TCSH shell is being made by William Joy and it is having 53 built-in commands and 18 command line options. इसमें 53 commands का shell का storage है. ZSH shell is being made by Paul Folstad. He is one of the largest shell for the Linux and features are 84 built-in commands and shell has more than 50 different command line options. Now let's talk about the Linux variables. अब देखो ये Linux variables हैं, इनको मैं आपको करके दिखाती हूँ. Linux variables are the environmental variables and these variables are always written in capital letters. ये variables सारे capital letter में लिखे रहते हैं. इनके अंदर already जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ये इन शेल वेरिएबल्स पे वैल्यूज ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है. ये शेल वेरिएबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड रहते हैं, पहले से ही इनिशियलाइज रहते हैं. ये शेल वेरिएबल्स सारे कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. Shell variables are the variables which store system related information. So these are the variables which performs the Linux related commands are being Linux related values are being stored, system related values are being stored in these environmental variables. ये environmental variables कहलाते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है डॉलर होम. हम जाएंगे accessories, application accessories and terminal and we will see all the commands. मैंने कमांड टाइप की
मैंने कमांड टाइप की प्रिंट env टाइप करने से आपको सारे के सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को लिस्ट आउट कर देगा। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है। ये एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। देखो लॉग नेम, जीनोम, होम, इसके अंदर वैल्यू दिख रही है, होम के अंदर स्लैश रूट दिख रहा है, होम डायरेक्टरी है, pwd स्लैश रूट दिख रहा है, मेल, सेशन, जीनोम, ये सारे के सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन। मैं echo कमांड लिखते हैं पहले। echo कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। सपोज प्रिंट कमांड जैसे रहती है printf हमारे सी प्रोग्रामिंग में, सी आउट विच इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली शेल में echo कमांड है। echo कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज ऑन द स्क्रीन। सपोज हेलो मैसेज मुझे प्रिंट करना है तो मैंने echo हेलो लिखा। echo हेलो ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू। बिना कोट्स के भी चलता है, सिंगल कोट के भी चलता है, हेलो। echo is a command which is used to print message on the screen. echo के साथ में हमें होम का जो हमारा एनवायरमेंटल वेरिएबल होम है उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं हम तो उसके पहले हम लोग डॉलर साइन लगाते हैं। तो डॉलर होम, सो इट विल प्रिंट द कंटेंट ऑफ होम डायरेक्टरी स्लैश रूट। होम डायरेक्टरी का पाथ क्या है? स्लैश रूट, क्योंकि मैंने किससे लॉगिन किया है? मैंने रूट से लॉगिन किया है। तो जब भी मैं रूट से लॉगिन करूंगी तो स्लैश रूट दिखाई देगा। अगर मैं यूजर बीसीए से लॉगिन कर रही हूँ तो मेरे होम डायरेक्टरी का पाथ स्लैश होम स्लैश बीसीए दिखाई देगा। अगर मैं बीसीए टू यूजर से लॉगिन करती हूँ तो डॉलर होम जो होम डायरेक्टरी है वो हो जाएगी, मतलब डॉलर होम हमारा एनवायरमेंटल वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू सेट हो जाएगी? स्लैश होम स्लैश यूजर नेम। जो भी यूजर से बीसीए यूजर से लॉगिन किया तो स्लैश होम बीसीए, और अगर बीसीए टू से लॉगिन किया तो स्लैश होम स्लैश बीसीए टू। तो ये HOME होम कैपिटल में जो होम डायरेक्टरी है दैट स्टोर्स द पाथ ऑफ द होम डायरेक्टरी। और अगर हम रूट से लॉगिन कर रहे हैं तो स्लैश रूट दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एनवायरमेंटल वेरिएबल है शेल, SHELL। शेल, कौन सा शेल हम यूज कर रहे हैं? बिन बैश शेल। बैश शेल कहाँ पर प्रेजेंट है? बिन डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप बिन डायरेक्टरी को ओपन करोगे तो वहाँ शेल दिखाई देगा, बैश शेल। देन द path, path is the environmental variable which gives us the executable path। जो हम लाइनक्स की जो हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करते हैं उसका जो पाथ है वहाँ एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर रहती है, दैट इज पाथ डायरेक्टरी। सो आई कैन प्रिंट द पाथ डायरेक्टरी यूजिंग डॉलर पाथ। कैपिटल में ही लिखना है। तो ये देखो ये पाथ डायरेक्टरी है। पाथ के अंदर स्लैश यूजर नेम, बिन स्लैश रूट स्लैश बिन बाइनरी, सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अवेलेबल है। बिन बाइनरीज, बाइनरीज में सारे के सारे जो हमारा शेल रहता है वो सारा का सारा जो भी कमांड्स है, ls कमांड है, pwd कमांड है, jdir कमांड है, उन सारी कमांड्स का मीनिंग जो है वो बाइनरीज में स्टोर रहता है। बाइनरीज कहाँ पर है? स्लैश रूट स्लैश बाइनरीज के अंदर अवेलेबल है। अब देखो मैं इस पाथ को मैंने सपोज डॉलर पाथ स्मॉल केस में लिखा तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, लाइनक्स इज केस सेंसिटिव। तो पाथ नाम से कोई भी डायरेक्टरी, पाथ नाम से कोई भी एनवायरमेंटल वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। अगर वो वेरिएबल उसके अंदर कंटेंट्स रहते, एनवायरमेंटल वेरिएबल सबसे पहली बात कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, और अगर वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्रिंट कराना है तो डॉलर लगाना पड़ता है उसके आगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट सिस्टम वेरिएबल इज यूजर, TERM, यूजर, पहले TRM, टर्मिनल, इट इज एक्स टर्मिनल, विंडोज एक्स टर्मिनल। हम लोग विंडोज टर्मिनल के ऊपर वर्क कर रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन द नेक्स्ट कमांड इज यूजर। कौन से यूजर से हमने लॉगिन किया? तो यूजर नेम इज यूजर, यूजर नेम इज रूट थ्रू व्हिच यू हैव लॉग्ड इन। prompt string 1, so let's print prompt string 1। so it is prompt string, मतलब ये हमारा स्लैश यूजर एट द रेट स्लैश होस्ट, देन बैक स्लैश w स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्लैश
एंड देन डॉलर साइन। तो ये जो हमारा आ रहा है इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग 1। हम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं। ps1 इक्वल टू डॉलर, तो हमारी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या होगी, डॉलर होगी। और ई को डॉलर ps1 इसको चेक किया तो हमारे पास में डॉलर स्ट्रिंग आ गई। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग 2 सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, मतलब अगर मैं सेकेंड टाइम लॉगिन करती हूँ तो क्या दिखाई देगा। इको ps2 तो ps2 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं इको डॉलर ps2 टाइप कर रही हूँ तो ये है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे टाइप कर रही हूँ तो इस शेल के अंदर घुस गया नेक्स्ट शेल के अंदर, और ये ग्रेटर देन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग 2 किया हमने। इको ps प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग 2 इको डॉलर ps2 prompt string 2, you will get this. I can change prompt string 2 is equal to suppose double bracket. Then you have ps is new line character bash syntax error unexpected. This cannot be changed like this. उसके अंदर जाके चेंज होगा। ठीक है, हमने ps हमने कौन कौन सी देखे, होम एनवायरमेंटल वेरिएबल देखा, सेकेंड एनवायरमेंटल वेरिएबल देखा term, थर्ड एनवायरमेंटल वेरिएबल देखा यूजर, फोर्थ एनवायरमेंटल वेरिएबल देखा ps1, नेक्स्ट एनवायरमेंटल ps2। ओके, व्हाट एल्स इज लेफ्ट, डॉलर होम trm, लॉग नेम भी रहता है। ठीक है, जिस यूजर से हमने लॉगिन किया, डॉलर path, path. So these are the different environmental variables we have seen. Dollar home, dollar term terminal, user ps1 ps2 log name। okay, and we have seen the shell also। कौन कौन सी शेल देखे हमने, शेल के नाम क्या देखे हमने, शेल के नाम क्या क्या देखे, शेल के नाम थे बैश शेल, tcsh शेल, कॉर्न शेल, ksh, okay, bash tcsh ksh, then tcsh ksh ash, bash, ASH, KSH, TCSH and ZSH. These are the 5 shells which are available in the Linux operating system. जिसमें से डिफॉल्ट शेल कौन सा है, बैश शेल। बैश शेल का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्न अगेन शेल। इसके अंदर 48 बिल्ट इन कमांड्स है और 12 जो है कमांड लाइन ऑप्शंस है, एक डजन कमांड लाइन ऑप्शंस है और 48 बिल्ट इन कमांड्स है। So today we have seen environmental variables and different types of shells. So now today's session, I'm closing today's session. You have to do the practical to create groups and users। users और groups create करने के लिए you have to do the